Hello everyone, myself Pooja Patil and I am studying in DCP second year at Srimati Sharad Chandrika Suresh Patil Institute of Technology, D Pharmacy, Chopra. So friends, today's my topic is Drugs and Cosmetic Act 1940 and their under rules 1945. In this video, I will be discussing about introduction, what it is and why it is important. So first of all, what is drugs? So drugs are all medicine for internal or external use of human beings or animals for all substances intended to be used for or in the diagnosis, treatment, prevention and mitigation of any disease or disorder in human beings or animals, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes. So what are cosmetics? Cosmetics are any article intended to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on or introduced into or otherwise applied to the human body or any part. This of the cleansing, beautifying, promoting, attractiveness or altering the appearance and includes any article intended for use as a component of cosmetics. So what are the objective of this act? This act provides the regulation of import, manufacturing, dispensing and sales. The various products like drugs, cosmetics, Ayurvedic, Siddha, Unani, homeopathic, etc. So in short, this act rules cover almost everything related to the pharmaceutical along with the cosmetics are also included and the Ayurvedic, Siddha, Unani, homeopathic system is also included. But its regulation contains import so means anything is to be imported from outside the India. It may be drugs, it may be cosmetics or it may be other products. Further that provisions are given for each everything license is required manufacturing of any product of this distribution or sale such products. The various authorities or various controlling authorities can be found and what are their function. So everything is covered in this act from time to time and recommended and amended but it's will discuss in latest amendment. So इंडिया में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था और वो तेजी से बढ़ने लगा था। तो कुछ लोगों ने इंपोर्ट करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में गए, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में गए, तो कुछ सेल्स में गए। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग बनती है। तो जो फार्माकोपिया में एक लिमिट दी हुई होती है कि इसके कितना परसेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर केमिकल होना चाहिए, कौन सा ड्रग होना चाहिए और कितने अमाउंट में कौन सा ड्रग चाहिए। तो इसी तरह से लोग जैसे कि फार्माकोपिया में बताया है कि किसी भी ड्रग की अमाउंट है वो 70% होनी चाहिए पर्टिकुलर की, लेकिन जो लोग क्या करते थे कि 70% की जगह पर 60% यूज करते थे। इसके उसकी एफिकेसी में कमी आती थी और अपना जो पर्टिकुलर थेरेपेटिक एक्शन है वो शो नहीं कर पाता था और कम कर पाता था, तो अपना एक्शन शो करने में टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए जो लोग उसको सब स्टैंडर्ड बनाने लग गए और मार्केट में बेचने लग गए। तो इस तरीके से लोग मिस ब्रांडिंग कर देते हैं। तो मिस ब्रांडिंग में क्या होता है कि जो लोग हैं जैसे कि वो कंपनी में बहुत कुछ चल रही है मार्केट में, उसी वैल्यूएशन है और एक जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन नहीं है। तो जो वो पहली कंपनी है वो खुद चल रही है, उसकी पैकिंग होती है, जो पैकिंग होती है इसी तरीके से बना के अपना जो प्रोडक्ट था वो मेडिसिन और ड्रग्स वो पैक करके सेल करेगा, तो उसी तरीके से मिस ब्रांडिंग करते हैं। तो इसी तरीके से जो केस था जैसे कि जो लोग बिजनेस को कर रहे हैं मेडिकल सेक्टर में, तो उसको एजुकेटेड पर्सन होनी चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों को एक्सपीरियंस था नहीं और उसे ऐसे ही वो बिजनेस स्टार्ट कर गए। तो लोगों को स्टोरेज की कंडीशन भी मालूम नहीं थी कि मेडिसिन को कितने टाइम पर टेम्परेचर पर स्टोर करना है, ना उसको एथिक्स मालूम था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो टाइम की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया कि असेंबली थी, उसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वो मालूम बनाने में करती थी, वो कानून बनाने में काम करती थी। तो उसको जो एक्ट पास किया था उसका नाम था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड देयर अंडर रूल्स 1945। सो जो एक्ट था वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा, इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल्स को। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेगा
का, तो उस टाइम पे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक थे वो गवर्नमेंट ब्रिटिश ने एक्ट पास किया था। सो आर्म ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में कौन कौन से चीज़ों पे चीज आते हैं, जैसे कि एलोपैथिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक एक्सेट्रा, कॉन्ट्रासेप्टिव, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, क्रीम्स, लोशंस, कॉस्मेटिक्स एंड डिवाइसेस। तो इन सारी चीज़ों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इस कैटेगरी में आते हैं। डिवाइसेस जैसे कि कोई भी इंटरनली और एक्सटर्नली यूज होने वाला डिवाइस हो, किसी भी डिसीज में ट्रीटमेंट करने में या फिर डिसीज और डायग्नोसिस करने में, डायग्नोसिस में यूज होती है, कोई भी मशीनरी डिसीज की डायग्नोसिस में यूज होती है, या फिर हॉस्पिटल को मशीनरी यूज होती है, वैसे भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की कैटेगरी में वो आता है। जो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इनहेलर्स और ये सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दिस एक्ट? सो रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, फॉरेन कंट्री से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को आ रही है, अभी भी ज़्यादातर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एपीआईज है वो फॉरेन कंट्री से है जो इंपोर्ट किया जाता है। रेगुलेट किया है, मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर वो आ रही है, इसको रेगुलेट करें, उस पर जो नज़र रखें, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नज़र रखें और सेल्स और मेडिकेशन की जांच करें। सो प्रिवेंट मिसब्रांडिंग, सबस्टैंडर्ड एंड स्पूरियस, तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है, इसका एक वो भी इसका ऑब्जेक्टिव रहा। तो चेक सेफ्टी एंड एफिकेसी। सेफ्टी एंड एफिकेसी होता है कि मेडिसिन और पब्लिक प्रोवाइड करती है, जैसे कि उसमें है उनकी क्वालिटी थी, उनकी एफिकेसी थी, उनमें गिरावट आ रही थी, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो इस वजह से उनकी एफिकेसी में गिरावट आ रही थी, उसकी जो थेरेपेटिक एक्शन था वो शो नहीं कर पा रहा था और फिर टाइम पर नहीं हो रहा था, उसकी वजह से इस चीज़ की जांच करी, जिसमें पब्लिक की जो सही ड्रग एंड मेडिकेशन प्रोवाइड करवा जा रही है। एंड इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव था कि फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडीज, तो कुछ ऐसी बॉडीज बनाई जाए जो सारी चीज़ों रिसर्च एंड मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में, जैसे कि रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे। तो उसके अंडर में कुछ बॉडीज बनाई गई जिसमें हर जगह पे मेंबर्स है, जैसे कि पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे हर जगह पर कुछ मेंबर लिए गए और एक ही बॉडी बनाई गई, गवर्नमेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसमें मेंशन किया गया है। तो बॉडीज है कि डीटीबीए मीन्स ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट सीडीएल मीन्स सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी, एंड डीसीसी मीन्स ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटीज। सो नेक्स्ट है AUDTAB, यानी कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। So thank you so much for watching this video.